Now question number 6 of exercise 7.1. The question is, in this given figure, side AC is equal to AE, AB is equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC. Angle BAD, this is equal to angle EAC. Then prove that BC is equal to D. This is your side BC and this is your side DE. ठीक है, सबसे पहले देखो फिगर में ये देख लेते हैं that BC lies in which triangle? This is your triangle ABC. BC इसमें lie कर रहा है and this side D is lying in triangle ADE. तो देखो सिंपल है, if you want to prove side BC is equal to side D, then first you will prove triangle ABC congruent triangle ADE. ठीक है, ये दोनों triangles congruent हो गए and by CP/CP you can easily say BC is equal to DE. ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले लेबल करते हैं what is given over here. AC equal AE, given AB equal AD given. ये दोनों दो इक्वालिटीज यहाँ पर गिवन है, खुद सोचो. If anyhow we can prove angle BAC equal angle DAE, then by side angle side both the triangles will be congruent. तो यहाँ पर हमारा प्लान क्या है? At first we are going to prove angle BAC equal angle DAE. ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस एंगल का यूज करेंगे. First I am writing since angle BAD is equal to angle EAC. This is given. ठीक है. Now the question is, with this angle BAD, what angle must be added to get angle BAC? ये जो angle BAD है, इसके साथ हम कौन सा ऐसा एंगल ऐड कर दें जिससे हमें क्या मिल जाए, एंगल BAC. तो कौन सा एंगल ऐड होगा, DAC. तो देखो फर्स्ट हम ऐडिंग एंगल DAC with this angle BAD. मैथ्स में क्या होता है, जितना लेफ्ट में ऐड होता है उतना राइट में, तो राइट में भी DAC ऐड होगा. सो एंगल DAC इज आल्सो एडेड विद एंगल EAC. ऐड कर दिया आपने. ठीक है, अब देखो एंगल BAD प्लस DAC, BAD plus DAC, this will give you this whole angle BAC. So write down angle BAC. In the same manner, angle DAC plus angle EAC, DAC plus EAC, this will give you this whole angle, and the name of this angle is DAE. Angle DAE. ठीक है, तो देख लो ये प्रूव हो गया ना. एंगल BAC is equal to angle DAE. अब हम सिंपली क्या दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड. तो देखो कैसे होगा. फर्स्ट आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ABC and triangle ADE we have, first you will write AB is equal to AD given, then after this you will write angle BAC equal angle DA proved above or proved earlier, whatever you want to write. Then after this you will write AC is equal to side AC is equal to side A. This is also given. ठीक है. So now you can say that both the triangles ABC and triangle ADE, they are congruent, and the reason is by side angle side congruence criteria. By side angle side congruence criteria. Correct. Now after this, because both the triangles are congruent, so their corresponding sides are equal. So now you can write BC is equal to DE. This implies BC is equal to D by CP/CP. So this is the explanation of question number 6. Please note it down. Now question number 7 of exercise 7.1. The question is, AB is a line segment and P is its midpoint. AB is a line segment and P is its midpoint. इसका मतलब है that AP is equal to BP. This is given. D and E are points on the same side of AB. D and E are points on same side of AB such that angle BAD, this is equal to angle ABE. This angle is equal to this angle. Also angle EPA, this angle is equal to angle DPB. Then prove that triangle DAP congruent triangle EBP. तो
देखो जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पहले उनका रफ फिगर बना लेते हैं। सपोज दिस इज योर ट्राइंगल DAP, ठीक है ना, एंड द नेक्स्ट ट्राइंगल इज EBP, इसको भी इसी फॉर्मेट में ऐसे बनाते हैं EBP। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दिस इज B, दिस इज P एंड दिस इज E, ठीक। ट्राइंगल EAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर, वो भी लेबल कर लो। AP इज गिवन इक्वल टू BP, ठीक है। देन व्हाट एल्स इज गिवन, एंगल EPA दिस इज गिवन, ये तो होगा नहीं लेबल। और क्या इसमें गिवन है, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल A और एंगल B इक्वल है, ठीक है ये, ठीक। अब देखो एंगल EPA और ये जो एंगल DPB ये इसके अंदर नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ करना है, ध्यान से सुनना, इफ यू वांट टू प्रूफ ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP कॉन्ग्रुएंट, देन हमें ये जो एंगल है तुम्हारा DPA, ये पूरा एंगल, और ये वाला एंगल EPB, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट विल प्रूफ ट्राइंगल एंगल DPA इक्वल एंगल EPB, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ये प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन लिखा। अच्छा देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है आपका, ये लिखा हो ना एंगल BAD। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल BAD दिस इज इक्वल टू एंगल AB, दिस इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल में क्या होता है, आर्म्स की लेंथ से कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा है ना एंगल BAD, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं PAD, है कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर BAD कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है PAD, हमें PAD चाहिए। तो हमने क्या किया, दिस इम्प्लाइज दिस एंगल BAD कैन ऑल्सो बी रिटन एज एंगल PAD। This angle ABE, this angle ABE, this whole angle, this thing can be written as PBE, इसको अपन ने क्या लिख दिया, PBE, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेट हो गया, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE, ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव एंगल DPA इक्वल एंगल EPB, ठीक है ना। तो उसके लिए हम किसकी मदद लेने वाले हैं, इसकी, ये लिखा हुआ ना एंगल EPA कहीं पर, ये सिंस एंगल EPA दिस इज इक्वल टू एंगल DPB, क्या था, गिवन था, ठीक है। एंगल EPA, दिस एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये बताओ what angle must be added to EPA to get angle DPA। ये जो EPA है ये वाला एंगल, उसके साथ हम ऐसा कौन सा एंगल ऐड कर दे कि हमें क्या मिल जाएगा, DPA। क्लियर है, कौन सा एंगल ऐड होगा, EAD, है ना, सॉरी EPD। we will add angle EPD with this angle EPA to get this angle DPA। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा एंगल EPA प्लस कौन सा एंगल ऐड कर रहे हैं, एंगल EPD, दिस इज इक्वल टू, अब जितना लेफ्ट में ऐड हो रहा है उतना राइट में भी ऐड होगा, EPD प्लस एंगल DPA। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। एंगल EPA प्लस एंगल EPD, देखो जरा फिगर में, दिस इज एंगल EPA एंड दिस इज एंगल EPD, ऐड करिए दोनों एंगल्स को, यू विल गेट दिस होल एंगल DPA। यहाँ पर हमने लिखा दिस विल गिव अस एंगल DPA, दिस इज इक्वल टू, नाउ एंगल EPD प्लस DPB, EPD देखो जरा यहाँ, EPD प्लस DPB, दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल गिव यू दिस होल एंगल, ठीक है ना। तो इसको आप लिखिए, जैसे हमने लिखा है DPA वैसे आप लिखेंगे EPB, ठीक। तो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ कर दिया, और ये दो गिवन ही है। अब देखो ये ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब देखो हम आगे लिखते हैं, नाउ इन
in triangle BAP and triangle EBP and triangle EBP we have सबसे पहले अपन ने लिखा एंगल DPA इक्वल एंगल EPB व्हाट यू राइट प्रूफ द अबव। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा AP इज इक्वल टू BP गिवन, और क्या लिखा आपने, ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है PAD दिस इज इक्वल टू PB, एंगल PAD इक्वल एंगल PBE। ये भी देखो यहाँ पर गिवन ही था, एस ने निकाल दिया तो दोनों का कॉमन रीजन लिख दो गिवन। नाउ वी कैन इजीली से that both the triangles BAP and triangle EBP are congruent and the reason is by angle side angle congruence criteria। ठीक है, तो चलो यहीं पर लिख देते हैं therefore triangle BAP is now congruent to triangle EBP EBP BAP is congruent to EBP and the reason is by angle side angle congruence criteria। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब देखो because both the triangles are congruent so their corresponding sides are और corresponding parts are equal। देखो ये दोनों triangles को आपने congruent proof किया, and what can you say about AD and B, they are also equal, so by CT you write AD is equal to BE by CP and hence proof। ठीक है, so this is the explanation of question number 7 of exercise 7.1, please note it down। Now question number 8 of exercise 7.1, the question is in right triangle ABC, this is a right triangle ABC, right angle at C, यहाँ पे 90 डिग्री तो 90 का मार्क बना देते हैं। ठीक है, M is the midpoint of hypotenuse AB, AB is the hypotenuse and M is the midpoint, so over here you can say AM is equal to BM। ठीक है, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM, also DM is given equal to CM, ये मार्किंग कर दिया। ठीक, point D is joined to point B, then prove that triangle AMC congruent triangle BMD, this is your triangle AMC and this is your triangle BMD, इनको congruent करना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो देखो if you want to prove triangle AMC congruent triangle BMD, यहाँ पर देखो दो इक्वालिटीज तो दी हुई हैं that AM is equal to BM and DM is equal to CM। सपोज करो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, this is angle 1 and this is angle 2 and what are angle 1 and angle 2, they are vertically opposite angles, है ना। अब देखो क्या है हमारे पास, by side angle side triangle AMC will be congruent to triangle BMD। चलो लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मैथमेटिक सॉल्यूशन, राइट, in triangle AMC and triangle BMD we have so first you will write AM is equal to BM, given AM is equal to BM, this is given, then after this you will write angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles, and in the end you will write CM is equal to DM, given CM is equal to DM, CM is equal to DM, this is also given, so by side angle side triangle AMC is congruent to triangle BMD and the reason is by side angle side congruence rule। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, now because both the triangles are congruent so their corresponding sides as well as corresponding angles are equal। अब देखो यहाँ एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेकंड प्रूफ है तुम्हारा एंगल DBC, ठीक है ना, इक्वल 90, इसको हमको प्रूफ करना है। दिस इज योर एंगल DBC, अगर इसको फिगर वाइज अपन देखें तो ये कुछ ऐसा है, लाइक दिस इज D, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज A।
ये सी तो 90 दिया हुआ है, हमें डीबीसी को क्या प्रूफ करना है, 90 करना है ना। तो खुद सोचो, अगर आपको डीबीसी को 90 प्रूफ करना है तो सबसे पहले ये जो डीबी है ये किसके पैरेलल होना चाहिए, एसी के। डीबी और एसी को क्या दिखाना पड़ेगा, पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल कैसे होगा, देखो अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए ना, ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीएमडी। हम क्या करते हैं, सपोज इसको एंगल 3 कंसीडर कर लेते हैं और इसको एंगल 4, ठीक। बाय सीपीसीडी व्हाट वी कैन से, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हैं ना। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ ये लिखा, बिकॉज ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी, सो ओवर हियर वी कैन राइट एसी, सबसे पहले एक साइड इक्वल लेते हैं, एसी इज इक्वल टू बीडी, ये सबसे पहले लिया। इसका ये क्यों लिया, इसका भी रीजन है। देखो जब हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीबी, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीबी, तो वहाँ पर ये एसी इज इक्वल टू डीबी का यूज हो जाएगा। वहाँ पर ये जो सिमिलरिटी है, सॉरी इक्वालिटी है, एसी इक्वल बीडी, उसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। पहले हमने ये लिया सीपीसीडी से, और हमने क्या ले लिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। बाय सीपीसीडी हमने ये दो चीज़ों को ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल बीएमडी से निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा, नाउ व्हाट आर एंगल 3 एंड एंगल 4? एंगल 3 एंड एंगल 4 दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, so लिखो दैट इज a pair of alternate interior angles are equal. Now in class in chapter number 6 lines and angles हमने क्या पढ़ाया था, that if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles are equal, then the lines will be parallel. If a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles, alternate interior angles are equal, then the two lines will be parallel. तो देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, that now DB is parallel to AC, DB is parallel to AC, ठीक है ना, ये अपन ने कर लिया। अच्छा ठीक है, now DB is parallel to AC, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो if DB is parallel to AC, then sum of this angle plus this angle, this will be equal to 180. Why? Because see these are co-interior angles and you know very well that co-interior angles are supplementary. हमने लिखा angle DBC plus angle ACB, this is equal to 180 degree and the reason is very clear, consecutive interior angles are supplementary. यहाँ लिख लेना, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ एंगल ACB, दिस एंगल ACB इज गिवन हाउ मच, 90 डिग्री, यहाँ 90 रखो, सो दिस इंप्लाइज एंगल DBC प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180, सो देयरफॉर एंगल DBC दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो डिग्री मेजर ऑफ एंगल DBC इज हाउ मच, 90 डिग्री। अब हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ वी प्रूफ ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। तो देखो अपन लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACB, ठीक है। क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले देखो फर्स्ट व्हाट आई रिटन, DB इज इक्वल टू AC, ये लिखा ना, फर्स्ट आई एम राइटिंग DB इज इक्वल टू AC, proved above, then angle DBC equal angle ACB equal 90। देखो अभी DBC को 90 दिखाया था और ACB 90 गिवन था क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा था दैट ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट सी, तो ये दोनों 90 हो गए, ठीक है। देखो ऐसे समझ लो इसको, यहाँ पर इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, देखो दिस इज योर ट्राइंगल DBC, दिस इज योर ट्राइंगल DBC, ठीक है, यहाँ पर 90 है, दिस इज योर ट्राइंगल
CB है ना, ये कहाँ पर 90 है, C पर, ठीक है ना। DB इज गिवन इक्वल टू AC, ये प्रूफ कर चुके हैं, ये 90 है, और क्या है यहाँ पर कह सकते हो दैट BC इज इक्वल टू CB, दिस इज व्हाट कॉमन, BC is equal to CB, this is common. So now you can write triangle DBC congruent triangle ACB, and the reason is by SAS congruence, ठीक है, by side angle side congruence rule, करेक्ट। अब देखो लास्ट प्रूफ, देखो लास्ट में क्या प्रूफ करना है, CM is equal to half of AB, ठीक। अच्छा, मतलब हमें प्रूफ में AB चाहिए ना, तो देखो दिस इज योर AB, नाउ बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बाय CP/CD, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, दैट DC इज इक्वल टू AB, तो इसके आगे हमने लिखा दिस इंप्लाइज DC इज इक्वल टू AB बाय CP/CD, करेक्ट। अच्छा, इन प्रूफ AB is getting multiplied by half, तो यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसका मतलब ये है it will multiply half on both sides, so half of DC is equal to half of AB. Now half of DC, देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन था that DM is equal to CM, M is the midpoint of DC, देखो ये given है यहाँ पर, DM is equal to CM, right? M is the midpoint of DC, so half of DC can be DM or CM, requirement किसकी है, CM की, so half of DC will be CM, this will be equal to half of AB, ये वैसे का वैसे कॉपी करना है, ठीक है ना। So this is the explanation of question number 8 of exercise 7.1, please note it down.